Assalamualaikum students, I hope you all are fine. So this is our fourth class of English literature. So in the previous session we were reading a story. Okay, very good. So what was the story? Very good. The Secret of Seaview Cottage. So students, before we continue and start reading the story, so I will give you a short recap. So students, listen carefully, okay? So student, we saw a Kestrel scout arriving with Mr. Millman, about which Jimmy dreamed of finding treasure from. After the meal, some incidents happened with the comrades that leads them to investigate about the ghost. Meeting upon Bob, Bob told Scoutmaster and the patrol that he and Jimmy witnessed a strange figure. When he was asked about Jimmy, he came to know that Jimmy vanished, searching for the ghost. They all planned to look after Jimmy, for which they passed through a cupboard where they found slippery stone steps which led to a tunnel. They had all the equipment ready for an emergency. So, along with full equipment, procession moved forward. Then Scoutmaster suddenly stopped them. Students rushed there by pushing each other in order to know why their master stopped for a thing. Now the Scoutmaster exclaimed that how they safely arrived there and what does the so-called ghost of Bob do for a living. Now everyone shared the same thinking, which was whispered by Bob that if they had hid smuggler's lair. Scoutmaster agreed with it and hoped the presence of smuggled goods worth up to 1,000 pounds. Now Jack Burton came to the conclusion that the smugglers harmed Jimmy because he went after them. The Scoutmaster nodded earnestly and then told to move forward together. Mr. Millman told the smugglers would do everything to keep their secret. Then Mr. Millman suddenly stopped speaking for a sudden loud voice, which was of Geralt, saying that he found an skeleton and some treasure. Then they all rushed towards the tunnel. They all shockingly looked at the objects. The Scoutmaster rejoiced, but was surprised that the smugglers didn't hide these objects. Then Gerald told that it was hidden and it got revealed by an accident when Gerald bumped into it. Now the Scoutmaster nodded in an agreeing manner. After checking the treasure and avoiding the bones, he picked himself up, saying, "We should not waste our time of it. With noise move the Kestrel, without noise move the Kestrel patrol ahead. I think I see the opening ahead," and leveled his torchlight some yards away towards the tunnel. Now the whole patrol turned off their torches. They crept towards the entrance. Their experience was weird, and they emerged to open air among the sand dunes. Stopped by the Scoutmaster, Bob thought someone is close. Now the whole scout behind the Bob ran forward between shrub-like bushes. Bob was leading as he found Jimmy lying and ran to him, asking him if he is okay. Jimmy's mouth was tied and Scoutmaster rapped out the rag from his mouth. He told him everything that happened with him. After knowing that the smugglers had taken the boat, Mr. Millman didn't waste a second and called up all the scouts. He signaled them to get Jimmy. Yes, he signaled them to get smugglers. So I told you further paragraph
short quick review also. Okay, it only hears when he told him everything that happened with him. Okay, so now student, let's start reading. So open your book. Okay, before we start I will give you also a review in Urdu. So हुआ क्या था कि कैस्ट्रल पेट्रोल को लेके जो मिस्टर मिलमैन था वो कहाँ पे पहुँचा था, एक टाइनी कॉटेज में, जिसमें जिमी जो था उसे बहुत क्यूरियस था वो कि यहाँ पे हमें क्या पता कोई ख़जाना मिल जाए। तो जो था स्काउट मास्टर जो था, फिर इन लोगों ने खाना खाया क्योंकि इन लोगों को भूख लग रही थी सी के सफ़र के बाद। उसके बाद फिर जिमी जो है उसको फिर क्यूरियोसिटी हुई। उसके बाद फिर उसने सर से पूछा कि क्या ये प्लेस हॉन्टेड है, तो उसके मिस्टर मिलमैन ने बोला नहीं, ये तो लोकल गॉसिप है। और मुझे याद है कि जब मैं और मेरे ब्रदर जो है यंग थे तो हमें अजीब अजीब से शेडो दिखते थे इसकी विंडोज़ से, सी व्यू कॉटेज की। अब जो है ना वो बोलता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें भूत नहीं दिखेंगे। अब जो था, अब बॉब और जिमी, ये जिमी जो है वो बॉब को बोलता है, यानी कि ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, उसे बोलता है कि चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं इस टाइनी कॉटेज को। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों चले जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर मिलमैन एक वाइंडिंग स्टेयर केस के करीब चले जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर मिलमैन पहले एक मंथ के लिए कुछ अपने स्काउट्स को वहाँ पे हॉलीडे के लिए लाए थे। अब ये दोनों उसकी तरफ चले जाते हैं। अब क्या होता है कि ऊपर सीढ़ियों से कुछ आवाज़ आती है और बॉब जो है वो हाँफता हुआ आता है और बोलता है कि मैंने घोस्ट देखा है। तो मिस्टर मिलमैन उसको डांटते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो और ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलता है नहीं, जिमी और मैंने कोई फिगर देखी थी वहाँ पे। तो फिर जैक बार्टन बोलता है कि भाई जिमी कहाँ है। तो बॉब जो है वो मतलब बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो समझा था वो मेरे पीछे है। तो मिस्टर मिलमैन जो है वो थोड़े एंशियस हो जाते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं चलो देखते हैं। फिर वो बेडरूम्स में तलाश करते हैं जो कि खाली होते हैं। उसके बाद जिमी लाइट जो है वो बहुत अजीब तरीके से अब कम्प्लीटली तौर पर वैनिश हो चुका होता है। अचानक से क्या होता है, रूम से एक चीखने की आवाज़ आती है, जहाँ पे बॉब अपना सपोज खोज देख चुका होता है, यानी कि उसने जो अपने दिमाग में बनाया हुआ था वो उसको फिर से दिख चुका होता है। फिर जो है जैक बार्टन जो है वो कबर्ड में घुसा हुआ होता है। उसके बाद बोलता है लुक सर, वो अपने स्काउट मास्टर को बोलता है कि इधर देखें, ये डोर ही है सिर्फ कबर्ड का, या इसके अंदर भी कुछ है। तो मिस्टर मिलमैन अपनी टॉर्च की रोशनी उधर डालते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, ये तो आधा खुला हुआ है। वो देखते हैं तो वहाँ पे उनको एक रास्ता मिलता है जो कि स्लिपरी स्टोन स्टेप्स का होता है। उसके बाद वो वहाँ से होके जाते हैं और फिर बोलते हैं जिमी यहीं से होके गया होगा। और फिर वो सब इमरजेंसी के लिए अपने साथ टॉर्चेस वगैरह रख लेते हैं। फिर जो है वो खामोशी से प्रोसेशन, यानी कि उनका जो ग्रुप होता है वो खामोशी से आगे बढ़ रहा होता है। अचानक से जो मिस्टर मिलमैन होते हैं वो रोक देते हैं। अब जो है सारे जो है, अच्छा वो चलते चलते जब सीढ़ियों से जाते हैं, इससे पहले क्या होता है कि वो एक वेल बिल्ड टनल में पहुंच चुके होते हैं। सही है, एक वेल बिल्ड बहुत अच्छी तरह टनल बनी हुई होती है, उसके ऊपर पहुंच चुके होते हैं, उसके अंदर पहुंच चुके होते हैं। अब जब वो जाते हैं तो फिर इसका मास्टर रोकता है उन्हें, सब जा रहे होते हैं। अचानक से वो ऑर्डर देता है कि रुक जाओ। और फिर वो बोलता है, यानी कि ओनर ऑफ द यार्ड भी कौन था, स्काउट मास्टर था, क्योंकि वही इन्हें यहाँ लाया था, किसको, अपनी कैस्ट्रल पेट्रोल को। तो बोलता है अच्छा तो ये है जिसकी वजह से टनल बनाई गई है, और ये सबूत है कि जिमी का घोस्ट जीने के लिए क्या करता है। और ये मतलब बोलता है इस वजह से यहाँ पे मैं इतनी सेफली पहुँच गया। अच्छा वो ये क्यों बोलता है कि यहाँ पे इस वजह से मैं सेफली पहुँच गया, क्योंकि स्मगलर्स के आने का रास्ता क्या होता है, टनल होती है। और ये लोग कहाँ से आए थे, ये तो दरवाजे से आए थे ना, तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे इतने सेफली पहुँच गए, क्योंकि ये टनल से आए ही नहीं थे, ये तो दरवाजे से आए थे। तो ये अब जो है फिर क्या होता है,
अच्छा, अब सबकी जो है ना, सबके सिर्फ लबों पर एक ही सवाल होता है, वो क्या, कि क्या हम स्मगलर्स की सीक्रेट जगह पर हैं। तो वो बोलते हैं स्काउट मास्टर, हाँ ये बिल्कुल सही है, और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे 1000 पॉन्ड्स की कॉन्ट्राबैंड गुड्स होंगी, यानी कि वो चीज़ें जो कि इलीगली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अब जो होता है स्काउट मास्टर, अब फिर क्या होता है कि जैक बार्टन बोलता है, लेकिन जिमी के बारे में क्या, अगर तो यहाँ पे एक स्मगलर हुए और वो मॉडर्न वन भी हुए, तो क्या वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा। तो स्काउट मास्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। फिर जो है वो बोलते हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, और ये जो स्मगलर्स हैं ये अपने राज को रिवेल होने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो इसके आगे बोलने ही वाला था कि ऐसा लग रहा था उसको किसी ने पॉज कर दिया हो। एक ईको की आवाज़ आई जो कि गैरल्ट टनमेल की थी। उसने बोला मुझे ट्रेजर और स्केलेटन मिला है। अब सब ट्रेजर और स्केलेटन देखने पहुँच जाते हैं जल्दी से। उसके बाद जो होता है स्काउट मास्टर बोलता है कि दिस इज़ अ फाइंड, बोलते हैं ये दरियाफ्त है ना। तो वो बोलता है अब मुझे समझ में आया कि टनल क्यों बनाई गई थी, और ये स्मगलर की बिज़नेस का पार्ट है। उसके बाद बोलता है लेकिन स्मगलर ने इसे मिस कैसे कर दिया, मतलब इसे ऐसे खुला कैसे छोड़ दिया, इसे हाइड क्यों नहीं किया। तो फिर गैलर बताता है कि ये प्लास्टर की कवरिंग से कंसील हुआ हुआ था, यानी कि हाइड हुआ हुआ था, और मैं इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिर गया, इसकी वजह से ये अनकवर हो गया। तो वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं कि फिर वो बोलता है कि अब हमें इसके बारे में नहीं, हमें जिमी राइट के बारे में सोचना चाहिए। और फिर वो क्या करता है, अब वो टनल से जाते जाते मतलब उसकी एंड तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अब वो टनल ख़त्म हो जाती है, अंधेरा होता है तो अब रोशनी हो जाती है। अब वो सैंड ड्यून्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि मिट्टी के टीले वहाँ पे बने हुए होते हैं और दरिया पानी का किनारा होता है। तो बॉब विलिस बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई है। फिर वो बोलता है हाँ मुझे भी। फिर वो बॉब विलिस उसके आगे चल रहा होता है स्काउट मास्टर के, कि इसलिए आगे चल रहा होता है ताकि वो अपने दोस्त को पहचान ले। फिर वो देखता है वहाँ से जिमी आ रहा है, तो वो जिमी से बोलता है तुम ठीक हो। तो फिर जिमी जो है उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ होता है और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। फिर स्काउट मास्टर जो है वो बोलता है कि ये अभी बोल नहीं पा रहा है। तो फिर वो जब हटाता है तो वो 1 से कम मिनट में ही अपनी सारी स्टोरी बता देता है। फिर वो बताता है कि उन्होंने मेरे हेड पर नॉक किया, यानी कि हेड पर मारा, और एक गंदा कपड़ा मेरे मुंह पे बांध दिया जिससे मैं मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। फिर उन्होंने सी हॉक स्टार्ट किया और मुझे इंजन स्टार्ट करने की आवाज़ आई। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट रीडिंग, ओपन पेज नंबर 17. ओके, सो Mr. Millman did not hesitate for a second, and as there was no longer any need for silence, he placed a silver whistle to his lips and blew through short blast the call of the Kestrel patrol. In a very short while, the rest of the scouts came up at the double. Okay, student, underline the word hesitate and underline the word blew. अच्छा, ब्लो माने क्या होता है? ब्लू इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लू, यानी कि कोई चीज़ ब्लो करना, यानी कि जैसे सीटी बजाते हैं उसमें हम ब्लो करते हैं ना, फूंक मारते हैं। और हेसिटेट तो आप घबराना। तो मिस्टर मिलमैन जो थे, ओके, नाउ मिस्टर मिलमैन ने क्या किया? मिस्टर मिलमैन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ सेकंड, यानी कि एक सेकंड के लिए भी, इसका मतलब है नहीं घबराए या नहीं रुके। और बिना किसी खामोशी के उन्होंने अपनी देयर वॉज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर साइलेंस, ही प्लेस्ड अ सिल्वर विसल, उन्होंने अपनी चांदी की सीटी बजाई और तीनों सीटियों में एंड ब्लू 3 शॉर्ट ब्लास्ट, मतलब तीनों सीटियों में द कॉल ऑफ द केस्ट्रल पेट्रोल, तीनों सीटियों में उन्होंने सारे केस्ट्रल पेट्रोल को बुलाया। सही है। द रेस्ट ऑफ द स्काउट्स केम अप एट द डबल, और कुछ ही देर में स्काउट्स दुगनी तादाद में हाजिर हो गए। ओके, द रेस्ट ऑफ द स्काउट्स केम अप एट द डबल, यानी कि दुगनी तादाद में स्काउट्स क्या हाजिर हो गए, यानी कि दुगनी तादाद में हाजिर हो गए।
came up at the double. Okay, man the outboard. Okay student, so underline the word outboard. Outboard means a boat with a motorized इंजन अटैच टू इट, जिसमें मोटर वाला इंजन लगा हुआ होता है ना बोट में, छोटी बोट होती है उसमें इंजन लगा हुआ होता है और वो फिर पानी में चलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटबोर्ड. कमांडेड द स्काउट मास्टर एंड मेक फॉर द याच. उन्हें बोला कश्ती को संभालो. मैन द आउटबोर्ड मतलब यानी कि कश्ती को संभालो. उन्होंने ऑर्डर दिया यानी कि कश्ती में बैठ जाओ, कश्ती को संभालो. एंड मेक फॉर द याच, और कश्ती को, वही इसका भी वही मतलब है कि कश्ती को जो है, कश्ती में बैठ के जाने के लिए तैयार हो जाओ. एंड मेक फॉर द याच. यू बॉब, ही एडेड, सिग्नल द कैप्टन टू अप एंकर. वी आर गोइंग आफ्टर दोज स्मगलर्स अनलेस ही हेसिटेटेड, अनलेस एनीवन वुड लाइक टू टर्न इन, ही फिनिश्ड. और फिर उन्होंने बोला, उन्होंने किसको बोला, फिर बॉब को बोला कि तुम कैप्टन से कहो एंकर उठा ले, हम इन स्मगलर्स के पीछे जा रहे हैं. ओके, एंकर होता है ना, जैसे एंकर डालते हैं और फिर कश्ती क्या होती है, किनारे पे जाके रुक जाती है, या कहीं भी रोकना होता है तो एंकर उस जगह पे डालते हैं. वो एक हुक होता है. ओके, बट वो स्पेशल होता है किसके लिए, शिप के लिए और बोट के लिए और कश्ती के लिए. हम इन स्मगलर्स के पीछे जा रहे हैं. We are going after those smugglers unless he hesitated. इससे पहले वो हिचकिचाते, उन्होंने जल्दी से मतलब ये बोला, हम उन स्मगलर्स के पीछे जा रहे हैं. Unless anyone would like to turn in, he finished. अगर कोई यहाँ से मुड़ना ना चाहे. ओके, उन्होंने बोला, उन्होंने फिर ख़त्म करते हुए बात को बोला, अगर कोई यहाँ से वापस लौटना ना चाहे. A chorus of protest went up, and a few minutes later the whole patrol was aboard the smaller of the yacht's 3 shore craft. अच्छा, तो student underline the word chorus. Its meaning is say the same thing at the same time, यानी कि एक चीज़ एक वक्त पे बोलना. ठीक है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक दफ़ा में एक चीज़ बोलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉरस, या चॉरस भी बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस आप कर सकते हैं. अच्छा, कॉरस ऑफ प्रोटेस्ट मीन्स एहतजाज. तो एक एहतजाजी शोर उठा, एहतजाजी कॉरस उठा, यानी कि नारा, एहतजाजी नारा उठा. सही है. went up, and a few minutes later the whole patrol was aboard the smaller of the yacht's 3 shore craft. और कुछ ही मिनट बाद सारा जो था पेट्रोल, यानी कि सारी कैस्ट्रल पेट्रोल जो थी वो निकल चुकी थी 3 गुना बड़ी याच से छोटी कश्ती में. यानी कि पहले जिसमें वो आए थे वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और ये कश्ती क्या थी, शोरक्राफ्ट, यानी कि बहुत छोटी थी. शोरक्राफ्ट उसी बोल रहे हैं जो किनारे की बोट खड़ी नहीं होती, किनारे किनारे कोई दरिया होता है उसके किनारे बोट्स खड़ी होती है ना, छोटी छोटी, उन्हें बोल रहे हैं यहाँ पे शोरक्राफ्ट. और अबोर्ड यानी कि सफ़र करना यहाँ पे. ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड अबोर्ड ऑल्सो. वॉज अबोर्ड यानी कि उसमें बैठ गए थे कश्ती में. It was a tight squeeze, for the stolen Seahawk was much the bigger boat. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, it was a tight squeeze. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन के तौर पर बोला जा रहा है. इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़ोर से निचोड़ा. इसका मतलब ये है कि इस कश्ती में क्या थी, काफ़ी घुटन थी, क्योंकि चोरी की गई सी हॉक काफ़ी बड़ी कश्ती थी. अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर द स्टोलन सी हॉक वॉज मच द बिगर बोट. सही है, चोरी की गई सी हॉक जो है वो काफ़ी बड़ी थी, बट द सी स्काउट्स मैनेज्ड इट एंड वर सून मेकिंग विदाउट लाइट्स फॉर द yachts that had not yet steamed away after bringing the boys to the cottage. लेकिन सी स्काउट ने सब झेल लिया. सही है, उन्होंने मैनेज कर लिया, यानी कि सब झेल लिया, और जल्द पहुंचने वाले थे बग़ैर रोशनी के, यानी कि अंधेरा हो रहा था तो बग़ैर रोशनी के वो पहुंचने वाले थे, क्योंकि याच इतनी दूर नहीं गई थी.
क्योंकि स्मगलर्स की जो कश्ती थी वो अभी इतनी दूर नहीं गई थी बॉयज़ को कॉटेज लाने के बाद। यानी कि वो याच जो थी, जब वो बॉयज़ ये बता रहे हैं कि जो बॉयज़ को पहले वो कॉटेज लाई थी अभी भी वो इतनी दूर नहीं गई थी। यानी कि वो चोरी करके तो ले गए थे, लेकिन वो अभी स्मगलर्स जो थे उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया था, अभी वो करीब थे कि उनको पकड़ा जा सके। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। When they arrived alongside, they were greeted by Captain Strutt. "You are too late, sir," he called out, "and it's a good job I didn't sail on the evening tide." When they arrived alongside, यानी कि जब वो किनारे की तरफ पहुँचे तो उनकी मुलाकात किससे हुई? कैप्टन स्ट्रट से हुई। They were greeted by कैप्टन स्ट्रट, यानी कि उनका इस्तकबाल किया गया। किसने? कैप्टन स्ट्रट ने। उसने क्या बोला इनसे? "You are too late, sir," यानी कि आपने बड़ी ताख़ीर कर दी, ताख़ीर कर दिया आपने। इसने बोला "And it's a good job I didn't sail on the evening tide." इसने बोला और ये एक अच्छी मुलाजमत है कि मैं शाम के वक्त में दरिया का सफ़र नहीं करता। अब उसने बोला कि मैं इवनिंग टाइड मतलब सेल तो आपको पता है ना, सेलिंग करना, यानी कि कश्ती में सफ़र करना। तो ये बोला है कि मैं शाम के वक्त, अच्छी जॉब है मेरी कि मैं शाम के वक्त कश्ती में सफ़र यानी कि दरिया का सफ़र नहीं कर सकता। "But I will lower the gangway, sir," he added, "and tell the whole story." Okay student, underline the word gangway. यहाँ पे here its meaning is here also. "An opening on the side of a boat through which passengers may board." अब ये बता रहे हैं जहाँ से पैसेंजर आते जाते हैं, यानी कि उनको उतारा जाता है फिर चढ़ाया जाता है कश्ती में, उस ओपनिंग को यहाँ पे बोल रहे हैं गैंगवे बोल रहे हैं। अब कैप्टन स्ट्रट ने क्या कहा? "लेकिन मैं गैंगवे नीचे कर देता हूँ," यानी कि जो ओपनिंग है वो गिरा देता हूँ, यानी कि वो ओपन कर देता हूँ। इसने ये भी कहा कि पूरी कहानी बताएं। ओके, ही एडिड, यानी कि उसने इसमें ऐड करते हुए बोला, उसने और ये भी बोला कि टेल द होल स्टोरी, मुझे पूरी स्टोरी बताएं। "नाउ व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, कैप्टन?" यहाँ पे कैप्टन किसे बोल रहे हैं? यहाँ पे कैप्टन को बोल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म। "डिमांडेड द ओनर ऑफ द याच एज ही फाइनली स्टूड ऑन डेक." Student, what is the meaning of deck? Underline the word deck. So deck meaning is, okay student, deck meaning होता है a floor of a ship, especially the upper open extended level for the full length of the vessel. यानी कि ये फ्लोर का, शिप का क्या होता है? फ्लोर होता है और ऊपर की जानिब होता है ये, और फिर ये फैला हुआ होता है, इसकी लेंथ एक्सटेंड हुई भी होती है जितनी बोट की लेंथ होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। यानी कि मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ द डेक, आई थिंक सो। ओके, सो demanded the as he finally said, "What do you mean by saying that we are too late?" So ओनर ऑफ द याच ने डिमांड करते हुए बोला कि जैसे ही वो किस पे चढ़ा? डेक पर चढ़ा। उसने डेक पे चढ़ा सबसे पहले, उसने बोला हमें बहुत ताख़ीर हो गई है, इससे आपका क्या मतलब है? यानी कि हमें देर हो गई है, इससे आपका क्या मतलब है? द हार्डली ओल्ड सॉल्ट सैल्यूटेड एंड देन grinned almost boyishly. सख्त मिजाज तजर्बेकार सेलर ने सैल्यूट किया और एक कुशादा बॉयज़ वाली हंसी यानी कि लड़कों वाली हंसी दी। ओके, "I mean just this, sir," he answered, and at a sign from him, 3 sailors came forward, dragging between them 4 very sorry-looking specimens of humanity. अच्छा, फिर उसने क्या बोला? कैप्टन स्ट्रट ने, "मेरा सिर्फ ये मतलब था सर," इसने जवाब दिया, और
इसने इशारे पर इसके इशारे जब उसने इशारा किया ना तो उस पर क्या है, 3 सेलर आए अपने दरमियान 4 अदद इंसानियत की अफसरदा निशानियाँ लेकर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लुकिंग स्पेसिमेंस फॉर ह्यूमैनिटी, सॉरी लुकिंग स्पेसिमेंस फॉर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि 4 अदद इंसानियत की अफसरदा निशानियाँ लेकर। जैसे ही उसने इशारा किया, यानी कि कैप्टन स्टर्ट ने इसलिए बोला था ये कि आपको बहुत देर हो गई है, यानी कि आपने बहुत देर कर दी, और क्योंकि वो ऑलरेडी स्मगलर्स को कॉट कर चुका था, पकड़ चुका था। वर यू लुकिंग फॉर दीज जेंटलमैन सर, ही आस्क्ड, क्या आप इन्हीं अशखास को ढूंढ रहे थे, इसने पूछा, यानी कि क्या आप इन्हीं हस्तियों को ढूंढ रहे थे। मिस्टर मिलमैन nodded. So, okay student, so that's all for today.